Students, today we are doing the topic of minerals as well as energy resources. As we already studies minerals and types of minerals, and today we are studying minerals as well as the energy resources. There are two type of energy resources we are seeing in our daily life: conventional resources as well as non-conventional resources. Now, what do you mean by conventional resources? Conventional resources means that natural resources that have been used for a very long period of time. It is known as conventional resources. इसका मतलब ये है बच्चे कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो बहुत सारे टाइम से पहले से ही हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में यूज़ हो रहे हैं. दैट मीन्स ओल्ड रिसोर्सेज. यू कैन आल्सो से दैट old resources, natural resources which are used for the long period of the time. Now what are the examples of conventional resources is, here are the various types of conventional resources. First is coal, petroleum, natural gas as well as the electricity. Now these are the four types of the conventional resources we are seeing in our life. Now what is the use of the coal, petroleum, natural gas and electricity? I am explaining you in the next slide also. Now you are seeing the sources of energy. In this picture you are seeing conventional as well as a non-conventional resources. Now further, conventional resources further divided into two parts: commercial as well as non-commercial. Commercial mean जो हम अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, जो हम प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज. नॉन कमर्शियल में जो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. जो रिसोर्सेज इंडस्ट्री में यूज़ होंगे दैट इज़ नॉन एज अ कमर्शियल रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, दैट इज़ नॉन एज अ नॉन कमर्शियल रिसोर्सेज. नाउ फर्दर इट इज़ अ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. In the commercial we are using coal, petroleum as well as the electricity, and in the non-commercial we are using firewood as the dry dung. Now in the non-conventional, solar energy, wind energy, tidal, bioenergy, energy from the urban waste, and these conventional sources are mostly used in our daily life. Government is making efforts for producing more non-conventional energy resources. Now the next is coal. Now कोयल आपको पता है बहुत पुराना रिसोर्स है हमारे इंडिया में, जो मोस्टली हमको यूज़ करते थे. पहले के आपके घरों में गैस वगैरह नहीं होते थे. पहले क्या होता था, कोयल के ऊपर ही आपका खाना बनता था. चूल्हा होता था ना, चूल्हे के ऊपर आप खाना बनाते थे. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द कोयल इन द इंडस्ट्रीज आल्सो? हाउ कोयल इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्री एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द कोयल as an energy resource? It is a main source of the fossil fuel and the power generation of India. जो कोयल है उससे हम पावर जनरेशन करते हैं. फॉसिल फ्यूल आपको पता है, फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं, फायरवुड वगैरह के लिए हम इसको यूज़ करते थे. नाउ पावर जनरेशन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किससे यूज़ करते हैं हम? कोयल से. लिग्नाइट इज़ अ लो ग्रेड ब्राउन कोयल विच इज़ सॉफ्ट विद अ हाई मॉइस्चर कंटेंट. अब हमारे पास टाइप्स ऑफ कोयल अगर हम बात करें, लिग्नाइट एक ऐसा हमारे पास कोयल है जो क्या है, लो ग्रेड कोयल है और ब्राउन कलर का होता है और सॉफ्ट होता है, जल्दी से टूट जाता है. नाउ द सेकेंड टाइप दैट इज़ अ anthracite is the highest quality hard coil and it contains 90% carbon, and the electricity generated from the coil is called thermal power. Okay, thermal power plants में किसका यूज़ करते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दो तरह से, या तो कोयल से या फिर हम पेट्रोलियम, कोयल से, पेट्रोलियम से, या हम किसका यूज़ करते हैं? यस, वाटर. वी आर यूजिंग वाटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम कोयल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज़ नॉन एज अ थर्मल एनर्जी. Now the estimated total coal reserves of the India is about 160 billion metric tons, which is found mostly in Damodar River Valley. Now the next is I am showing you the picture of the coal extraction. किस तरह से कोयल निकाला जाता है कोयले की खानों से. Now the next topic is petroleum. It is the second most important energy resource, and the petroleum refineries act as a nodal industry for the synthetic industry and the various other chemical industries.
आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि पेट्रोल एक ऐसा हमारे पास एनर्जी रिसोर्स है जिससे हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती है, और ये मोस्टली कहाँ यूज़ होता है? नोडल, एज ए नोडल इंडस्ट्री फॉर, नोडल मतलब मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री किसके लिए है? सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में या अदर केमिकल इंडस्ट्रीज में हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं। और पेट्रोल का कहाँ यूज़ होता है? Yes, definitely in your vehicles also we are using petrol. Now, about 63% of the India's petroleum production is from the Mumbai High. मुंबई हाईवे शोर से आपके पास 63% आपके पास पेट्रोल आता है, एंड इट इज़ आल्सो नोज अ ब्लैक गोल्ड वैल्यूएबल एसेट। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में CNG है, LPG है, ठीक है ना, आपको पता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड प्रोफाइल गैस, विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इट इज़ लेस पॉल्यूटेड गैस। इससे पोल्यूशन क्या होता है? कम होता है। इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस, इट इज़ आल्सो नोन एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस, एंड इट क्रिएट लेस पोल्यूशन एज कंपेयर टू द अदर गैसेज. It is a mixture of hydrocarbons and it consists mainly of methane gas. It is environment friendly fuel and found in Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Assam, Andaman and Nicobar. Examples are LPG as well as CNG, and it is used as a transport fuel. Okay. Now next is electricity. इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग अपने घरों में भी देखते हो, अपने फैक्ट्रीज में भी देखते हो, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है हमारे यहाँ पर. इट इज़ जनरेटेड मेनली टू वेज बाय रनिंग वाटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द फास्ट फ्लोइंग वाटर, एंड द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. मैंने आपको पहले भी बताया ना, जब हमने कोयल की स्लाइड को हमने डिस्कस किया थर्मल पावर. देयर आर over 310 thermal power plants in India. Hydropower produce 1/4 of the world's electricity. In India, various multipurpose projects are taken. The hydro कौन से है बेटा? वो वाले भांगड़ा नंगल, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड चंपाल एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन हमारे पास है, जो हमारे पास किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं. Okay students, I hope you understand this topic properly. Now the next slide I am showing you the hydropower plant. देखो दिखा रहे हैं ना कि किस तरह से पानी के फास्ट फ्लोइंग वाटर से हम लोग डैम्स के ऊपर बना होता है, ये डैम्स के नीचे ऊपर नहीं, डैम्स के नीचे बना होता है हाइड्रो पावर प्लांट्स, ऊपर डैम्स बने होते हैं. किस तरह से वहाँ से वाटर को हम स्टोर करते हैं, आगे उनके वहाँ टनल्स लगे होते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. I am showing you the picture of the hydropower plant also. Okay. Now this is a total topic. I hope you understand this properly.